लिसनिंग सेशन रहेगा आज। सर आपको कोई कैसे डिस्क्राइब कर सकता है? आप तो अनडिस्क्राइबेबल हो सर। भाई फिर भी अनडिस्क्राइबेबल हो, फिर भी कुछ तो बोलोगे। एग्जाम में लिख के आ जाओगे क्या आपके सुभाष चंद्र बोस को कौन डिस्क्राइब कर सकता है? वो तो अनडिस्क्राइबल है। ये लिख के आ जाओगे क्या? नंबर आ जाएंगे फिर आपके। हम आपको कह रहे हैं कि इंडिया को डिस्क्राइब करो, आप कहोगे जी ये इतनी आजाद हुआ, 2 सेंटेंस आपने बता दिए। फिर आप कह रहे हो इंडिया को कौन डिस्क्राइब कर सकता है? ये क्या हुआ? चलिए ध्यान से सुनिए, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है। सुनना है, नोट करना है आपको। नोट्स में फोटो मंगवाऊंगा आपके नोट्स का, क्या आपने लिखा है, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, कितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं। ठीक है ना? अब आप सुनिए जरा, इसका टॉपिक आप डाल सकते हो गुड मैनर्स। देखिए, थिंग्स आर डिफरेंट टू ऑल द पीपुल। कोई बात किसी के लिए सच हो सकती है, किसी के लिए झूठ हो सकती है। हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, सुनिए और ध्यान से समझिए, जरा फोकस करना लिसनिंग पे। देयर वॉज वंस अ यंग मैन who was strong and healthy and enjoyed his work। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, एकदम सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस हैं, समझने की कोशिश करना है। इन एवरी वे, in every way he felt on top of life। He had no sympathy for the uninteresting folk who seemed to form such a large proportion साउंड पे फोकस करो, of the population। लिख लो आप, अभी बाद में पूछना। One day he got an attack of influenza लिखो, इन्फ्लुएंजा। अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा एक लेटर की गलती होगी। इन्फ्लुएंजा। अब स्पेलिंग चेक करो, INFLUENZA। चेक कर लो कितनी गलत है कितनी सही है। फोकस करोगे साउंड पे तो स्पेलिंग ऐसी आ जाएगी। He had it before and paid little attention to it, but this time he developed pneumonia। निमोनिया की स्पेलिंग बोल रहा हूं, PNE, पी से शुरू होती है, पी साइलेंट होता है, PNEUMONIA, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया ऐसे बोलोगे तो आ जाएगा, पी साइलेंट है। एंड वॉज डेंजरसली इल। फिर से बोल रहा हूं इस सेंटेंस को। वन डे ही गॉट एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। He had it before and paid little attention to it, but this time he developed pneumonia and was dangerously ill। पहचानो सेंटेंस कहां खत्म हो गया। एक्सेंट देखो, प्रोनाउंसिएशन देखो, फोकस करो। When he recovered, he could only move slowly। He was easily tired and life became difficult for him। When he was well enough to go to work, he found the journey home very tiring। TIRING। फोकस करो, अपने आप आ जाएंगी स्पेलिंग। He looked at the strong man, he looked at the strong young man sitting comfortably in the train or bus, and then feeling tired himself, noticed how tired some of the older people were who were standing beside him। There were two types of people. Young men were sitting comfortably, and the old men
were standing. समझ जाओ यहाँ पर क्या कहने जा रहे हैं हम. And what should be the good manner here? What should be the good manner here? When he was going to home, he saw in the bus. Usually, he would see in the bus or train that young man sitting comfortably on the seats, and old men were standing beside him. Is it good manner? Sir, young men should offer Yes, seats you to are right. older ones. Right. Very good. Nice interaction. आ जाओ, स्पीकिंग भी हो रही है. नाइस इंटरेक्शन. बोलो बीच में जब पूछ रहा हूं तो मैं आपसे. बैठे मत रहो. Gradually, he got strong again. Gradually, gradually, gradually. Gradually. Gradually, he got strong again. But when he was in a train or bus, he now looked around to see if there was any older person in need of seat, and if there was anyone, he gave up his seat to the older man. Is it right or wrong, Anjali? Right. What would he do? He should give Should क्यों लगा रहे हो? मैं तो would लगा रहा हूं. He would offer the seat to older man Yes. or woman. Very good. And he would say that I have got my strength back now. These older people will never have their strength again. क्लियर हो गया? यहां तक बहुत सिंपल सा पैसेज था, पैराग्राफ था. अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो. समझ में आ गया होगा इसमें क्या कहा जा रहा है. क्लियर हो गया? So, what thing you learned here in this passage, in this paragraph? What one thing you learned here in this paragraph? To help the old one. To help the old one in any way, whether it is the matter of giving seat or anything else. Okay, very good. ऐसे चेक करूंगा मैं कितना आपको समझ में आ रहा है. Okay, now when you are cycling, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, बिल्कुल कोई ऐसे सेंटेंसेस नहीं है. When you are cycling and see an old man hesitating on a crossing, don't call him an old fool. Sometimes you see a lot of people, they are older and they are not able to cross the road. So what would you do, Simran? Sir, I help the person. हेल्प कैसे आ जाएगा? आई वुड हेल्प आएगा ना. आप करते हो या मैंने मुझे क्या करोगे आप? आई वुड फोकस करो. हेल्प कैसे आ जाएगा? वर्क फॉर्म में हेल्प मैं करती हूँ थोड़ी आ जाएगा. मैंने पूछा क्या करोगे आप? I would help the old man इन व्हाट? cross the road. यस, इन क्रॉसिंग द रोड. सब अलर्ट रहो. मैं ऐसे पूछूंगा क्वेश्चन सभी by calling their names. He may not hear very well, or he may not see clearly. I'm talking about the old man who is standing at crossroads. He may not hear very well, or he may not see clearly, or he may have become tired with walking. Perhaps he was a famous soldier. That old man, maybe now he's retired, but I think once he may be a soldier in the war, and his wounds are still painful. Or perhaps he had an artificial leg. One day you may go to a war
and be severely injured? What will you think if school boys make fun of you because you can only move slowly? Okay, so what did you learn from this paragraph, Yogesh? समझ में आ गया आपको क्या मैंने बोला था इस पैराग्राफ में, क्या बात की थी? नो सर। क्यों, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? सर थोड़ा बहुत आया। क्या, कितना समझ में आया आपको? चलो ये बताओ। हमें हमें ओल्ड ओल्ड व्यक्तियों की रोड क्रॉस करने में मदद करनी चाहिए। बस ये बोल दो ना अंग्रेजी में, आप क्या दिक्कत आ रही है? बोलो अंग्रेजी में इसको। वी वी शुड हेल्प टू ओल्ड मैन्स काय में पूरा बोलो ना। टू सॉरी क्रॉसिंग रोड। हाँ, इन क्रॉसिंग द रोड, पूरा आ तो रहा है समझ में आपको? और कैसे समझोगे? कॉन्फिडेंस ही साथ में नहीं होगा तो क्या करोगे? आ तो रहा है पूरा, सही आंसर तो दे दिया आपने। One of the things all boys and girls are going to learn before very long is that they are fragile. फ्रेजाइल लिखो, फ्रेजाइल, स्पेलिंग लिखो अपने आप बना के, फ्रेजाइल, मैं बोलूंगा बाद में। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल, इसका मतलब होता है वीक, कमजोर। सर, हाँ, how we will get to know that where to add Z and where to add Z? Sorry, प्रैक्टिस G ही and आएगा, Z. प्रैक्टिस ही आएगा ये। कई बार जेड भी आता है, इसका कोई तरीका नहीं है। Okay, sir. प्रैक्टिस करो, आ जाएगा अपने आप। ध्यान दो, चीजों पे फोकस करो। जैसे इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एक नहीं, पचासों चीजें हैं। आपको कैसे पता चलेगा PUT को पट बोलना है कि पुट बोलना है? CUT को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? Cut. क्यों? पुट, कट, पुट क्यों नहीं? सर आज तक सुना ही कट है। तो फिर आज तक इसको भी ऐसे सुनो, बस इसका कुछ पता नहीं चलेगा। ओके सर। हाँ, यहाँ ज्यादा दिमाग लगाओगे तो भटक जाओगे। वर्ड्स पे फोकस करना सीखो, चीजें अपने आप आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं इंग्लिश में ऐसी, बहुत सारी चीजें हैं। कोई जवाब नहीं है। नॉलेज में के क्यों आ रहा है, राइट में W क्यों आ रहा है, GH क्यों आ रहा है, कोई जवाब किसी के पास भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये तो वोकैबुलरी वाला मामला है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। One of the things all boys and girls are going to learn before very long is that they are fragile little things. They means all the boys and girls, they must learn it, that they are not strong in this dangerous world. क्लियर हो गया? फिर से बोल रहा हूं। One of the things all boys and girls are going to learn before very long, बिफोर वेरी लॉन्ग का मतलब बहुत पहले से ही जो चीजें उनको, जो वो सीख रहे हैं, जो चीजें उनको सीखने जा रहे हैं, वो दैट दे आर है किसके लिए? बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। दैट दे आर फ्रेजाइल लिटिल थिंग्स इन अ डेंजरस वर्ल्ड। योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स and all older people have had some severe blows already. Blows, BLOWS. They get more severe blows every day, every year. Most of them would give all the money they have to get your health and strength. Most of them would give all the money they have to get their health and strength.
their good teeth and nice hair. A lot of people are there who spend a lot of money on themselves, on their health, to build up their, to grow their strength, for their teeth, for their hair. You know very well. You have no idea how tired they are at times. But because they do not complain, you think everything is all right. Sorry. But they do not complain. You think, अब देखो कितना फर्क आ गया बोलने में, दोबारा से सुनो. But because they do not complain, you think everything is all right. Well, try to make life easy for them so far as you can. And when it is your turn to suffer in your old age, you will feel happier for having helped when you could. But if you help others, definitely you will get help from others. Good manners are also important when you are with your own friends. Sometimes you are with your friends. So, good manners are also important when you are with your own friends. When you speak to anyone, speak clearly and sufficiently loudly for the person to hear so that he can understand it properly. It is also a manner, a good manner, that when you speak, you must speak clearly so that others can understand it. It is an insult to a person to ask his attention and then speak so that he does not understand you. And remember, it is your responsibility to make yourself understood. आपको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए चीजों को. ये बोलने वाले की जिम्मेदारी नहीं है. इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर to make you understand, but it is also your responsibility to listen the things carefully so that you can understand. And there are both things. First, it is the duty of speaker to say clearly, to speak clearly, and it is also the duty of listener to listen so carefully so that he can understand what is being spoken. Clear हो गया आपको? So Lakshmi, what did you learn from it? I learn a lot of things that, and we should. It is our responsibility when we stand stand front of anyone. We should understand what 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 is he or she speaking, and 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 it is also him it is also him and her responsibility to क्यों आएगा? speak हिज आएगा ना? yes sir, हम्म. his or him his or her to understand clearly the other person, and वेरी गुड, that's it sir. वेरी गुड. बहुत अच्छा, शाबाश. अलर्ट रहो थोड़ा सा. बहुत बढ़िया चीज चल रही है जो करवा रहा हूं मैं. फोकस करो थोड़ा चीजों पे. सर हम्म. हेजिटेटिंग का मतलब क्या होता है? हिचकिचाते हुए, जब सड़क क्रॉस करते हैं तो हिचकिचाहट होती है ना, निकले कि नहीं निकले, क्रॉस करें कि नहीं क्रॉस करें. हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए, नॉन फाइनाइट वर्ब है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ये देखिए बहुत अच्छी बात है अब इस पैराग्राफ के अंदर. सुनना जरा ध्यान से, ध्यान से सुनना. एन अमेरिकन राइट सेड, it takes two
TWO2. It takes two to speak the truth. It takes two to speak the truth. One to speak and another to hear. समझ में आ गई बात आपको? बहुत गहरी बात है. सच को बोलने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला. आपको कोई सुनने वाला कैसे? सुनने वाला कैसे? एक बोलने वाला और एक सुनने वाला. सुनने वाला और बोलने वाला कैसे? अब सुनिए जरा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग. सेइंग का मतलब कहावत. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग and it would save a great deal of argument and annoyance in life. Annoyance, annoyance, ANNOYANCE. Annoyance. Annoyance का मतलब होता है नाराजगी. ठीक है, सुनिए दोबारा से. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग. बहुत ध्यान से सुनना. ये लिसनिंग केवल इंग्लिश के लिए नहीं है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है. एंड इट वुड सेव a great deal of argument and annoyance in life if people paid attention to it. क्या कह रहा है सामने वाला, उस पर अगर अटेंशन किया जाए, ध्यान से उस बात को समझा जाए, या ध्यान से अच्छे से वो बात कही जाए. दो बातें होती हैं. अच्छे से कही जाए वो बात और अच्छे से समझी जाए वो बात. तो इससे क्या होता है, बहुत सारे आर्गुमेंट से आप बचा सकते हैं अपने आप को. बहुत ज्यादा एनोयंस, उससे आप बचा सकते हैं अपने आप को. अब सामने वाला कुछ और कह रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो. हाँ, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चीज निकाली आपके लिए. अगर आपको डेवलप करना है अपनी पर्सनैलिटी को, इफ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, सुनिए ध्यान से आप चीजों. एक मिनट, क्या हुआ? ध्यान से सुनना आप जरा. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है. सो स्पीकर एंड लिसनर both are important. So this is why it is said that it takes two to speak the truth. You have to express it. If you want to speak truth, so you have to express it differently for different people. You have to speak it differently for different people. For some people, सुनिए जरा ध्यान से, अब एग्जांपल्स आ रहे हैं. For some people, socialism means taking money from those who have money and giving it to those who don't have money. This is socialism for some people. Means taking the money from those who have money and giving it to those who don't have money. Is it right or wrong? Right? This is right. Kajal, is it right? Yes, sir. Taking money from those who have money and giving it to those who don't have money. Is it right? समझ रहे हैं मेरी बात को आप? समझे नहीं?
हाँ, किसके समझ में आया? योगेश थोड़ा सा इधर आओ, तेरा मोबाइल को थोड़ा सा इधर सेट करो आप, थोड़ा सा पूरे दिखो आप, थोड़े से चेहरे का एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। मोबाइल को थोड़ा सा ऐसा रखो जो आपका फेस दिखे पूरा। हाँ, ये बात किसको समझ में आ गई? इसको कौन बताएगा क्या है जो मैंने बोला है अभी? फॉर सम पीपल सोशलिज्म मीन्स टेकिंग मनी फ्रॉम रिच and giving it to poor. Sir, Yes, Gaurav. sir, it means that you took money from rich people and distributed it to poor. And I think it's wrong because how would you take money from the rich? They will not give it to you free, and if you worked for the money, it's your now. So why would you give it to poor? You are right. I agree with you. Shabash. This is the way of interaction. And now, for some other people, what is socialism? For some other people, socialism means state control of industry and commerce. क्लियर हो गया? दो तरह के लोग तो आ गए ना। एक तरह के लोग कैसा सोशलिज्म मानते हैं वो देख लिया। दूसरी तरह के सोशलिज्म, दूसरी तरह के लोग कैसा सोशलिज्म मानते हैं। आप नोट्स लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्या है उनके लिए? स्टेट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। टू अदर्स, ये दो बात हो गई, और आ जाइए आप। टू अदर्स, वी कैन नॉट टेल अ मैन द ट्रूथ अबाउट सोशलिज्म until you know what he understand by the term. समझने के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरीके से उस चीज को समझ रहे हो। If you say I believe in socialism and he understands that you mean you believe in robbery, you must not be surprised, because if you think that taking from rich and giving to poor, this is a kind of robbery, okay? If he takes a dislike to you and if that is not what you mean, you did not speak the truth, मतलब उसके लिए अगर वो कहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी होता है। सोशलिज्म का मतलब तो स्टेट कंट्रोल ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। दूसरा कह रहा है, दूसरा किसी तरीके से सोच रहा है चीज को, दूसरा किसी तरीके से सोच रहा है चीज को। एक के लिए वो चीज सही है और दूसरे के लिए गलत है। अब सुनिए आप, एक और बहुत अच्छा ऐसा एग्जांपल है। इफ अ मैन सेज टू अ फ्रेंड, गुड मॉर्निंग मिस्टर ए, ओके, एंड द फ्रेंड रिप्लाइज it is not a good morning at all. गुड मॉर्निंग हमेशा अच्छी होती है क्या? मॉर्निंग हमेशा गुड होती है क्या? किसी स्टूडेंट की तो सुबह जाते ही स्कूल में कुटाई हो गई और आप उसको कह रहे हो गुड मॉर्निंग, उसके लिए क्या गुड है उस मॉर्निंग में? व्हाट इज गुड इन दैट मॉर्निंग फॉर दैट पर्सन? है कुछ? आगे बात समझ में आपको? So it is not always easy in company to speak frankly, and if you don't want to be considered a bad mannered person, if you not like people to say you bad mannered person, you have to watch constantly for signs. साइंस का मतलब बॉडी लैंग्वेज। बोल रहे हो तब भी, और कोई बोल रहा है तब भी देखो, और कोई सुन रहा है वो भी देखे कि हाँ यार इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। आप बोल रहे हो और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज जो सुन रहा है
वो आपको ये शो कर रही है कि यार दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, then you should stop. But if you are continuing speaking without noticing that whether that person that is before us is interesting or not in this, समझ में आ गई बात आपको? सामने वाले को भी तो देखो ना कि यार वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा सुनने में। आप बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। It is not easy, for example, to listen for long to any person. It is not easy to listen so long to any person. Is it easy? No, I think it is not easy. Try in company to take only a fair share of the conversation. चार लोग बैठे हुए हैं तो हिसाब से बोलो, और भी हैं बोलने वाले भाई, ये नहीं कि आप चालू हो गए तो बस आप भी दूसरों को बोलने ही नहीं दे रहे। आप क्लियर हो गई बात आपको? तो फिर से मैं पढ़ रहा हूं। इट इज नॉट इजी फॉर एग्जाम्पल टू लिसन फॉर लॉन्ग टू एनी पर्सन, ट्राई इन कंपनी। कंपनी मतलब कोई भी साथ आप बैठे हैं 4 5 7 लोग तो वो कंपनी हो गई। ट्राई इन कंपनी टू टेक ओनली अ फेयर शेयर of the conversation. If there are two of you, दो ही लोग बात कर रहे हैं, if there are two of you, take half of it. समझ में आ गई बात आपको? नहीं समझ में आई बात? If you are two persons, then allow the other person also to speak. समझिए मेरी बात आप? When you have said a little, थोड़ा सा बोल लिया, then keep quiet and give your friend a chance to say something. आगे बात समझ में? योगेश समझ में आया नहीं आया? क्या बोला मैंने अभी? बताओ क्या समझ में आया? हमें 6-7 जनों के ग्रुप में बोलते टाइम सभी को बोलने का मौका देना चाहिए। और अभी जो मैंने बोला, इफ देयर आर टू ऑफ यू, टेक हाफ ऑफ इट। अगर तुम 2 हैं तो आधा आधा लेना चाहिए। वेरी गुड, यानी कि उसको भी व्हेन यू हैव सेड अ लिटिल, कीप क्वाइट एंड गिव योर फ्रेंड अ चांस टू से समथिंग। इफ ही डज नॉट टॉक, you are speaking and the other person is not speaking, he probably does not want you to talk more. आ गया समझ में? क्या मतलब हुआ कल्पना इसका? If he does not talk, he probably does not want you to talk. बोलो कल्पना क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल सी इंग्लिश है। आपको भी नहीं बोलना हैं? अगर वो नहीं बोल रहा है तो नहीं बोलना। आपको भी नहीं बोलना है, फिर दोबारा सुन ले। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा बोला इसने। मतलब वो अगर नहीं सुन रहा है, वो अगर चुप है तो वो चाहता है कि आप भी अब और मत बोलो बस। सुनिए आगे। Many a young man or woman talks away, बोलते ही रहते हैं। Thinking, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई यहाँ पर, सोचते हुए। Thinking the company is delighted to hear him or her, and everyone is really exhausted and angry. बोला मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, सबको मजा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे बात समझ में आपको? एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, समझना जरा इसको, मैं पूछूंगा बाद में क्या मतलब है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डोंट थिंक यू कैन से अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट समवन बिहाइंड हिज बैक। होता है ना कई बार अपन पीठ पीछे बातें करते रहते हैं लोगों की, फला ऐसा है, फला ऐसा है। फिर से सुनिए आप। डोंट थिंक you can say unpleasant things about someone
behind his back and not be found out. आ गया समझ में? फिर से सुन लो एक बार, मीनिंग पूछूंगा इसका मैं. Don't think you can say unpleasant things about someone behind his back and not be found out. काजल क्या मतलब हुआ? समझ नहीं आया. क्या कर रही है? समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो. Don't think you can say unpleasant things about someone behind his back and not be found out. सर मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अपन किसी के बारे में उसके पीठ पीछे कुछ बोले, उसे पता ना चले. हाँ, वेरी गुड, शाबाश. फोकस करो, फोकस किया करो अच्छे से सारे लोग. कोई भी चीज में वर्थलेस नहीं होती है. जो भी चीज मैं करवा रहा हूँ वो इंप्रूव करेगी आपको. आपको नहीं पता अभी चीजों का. सो इट इज सरप्राइजिंग, वही बात चल रही है अभी. इट इज सरप्राइजिंग हाउ द रिमार्क्स मतलब कोई भी टिप्पणी, कोई भी बात, हाउ द रिमार्क्स usually find their way to the person with your name attached, so to speak. आ गया समझ में? सब फिर से सुनो. It is surprising how the remarks usually find their way to the person with your name attached. आ गया समझ में सिमरन? सिमरन है ही नहीं. सिमरन, हर्ष तुम बताओ. सर जरूरी नहीं है कि जो वो टिप्पणी कर रहे हैं उसके अंदर आपका नाम हो. ना ना ना, गलत बात, आपने सुना ही नहीं. सर सुनना तो सही, ये तो था कि बहस मत कर मेरे से. सॉरी सर. बहस मत किया कर मेरे से. फिर से सुन ले आराम से. It is surprising how the remarks usually find their way to the person with your name attached. अब सुनो, ध्यान सुन लिया. अब क्या सही तो बोला था तुमने? नो सर. तो देन फिर बहस कर रहे हो जबरदस्ती की. सही तो था सर, सही तो था सर, यही तो था सर. ये क्या तरीका होता है? तुम्हारा फोकस नहीं होगा बाबू, मेरा फोकस है पूरा का पूरा. बोलो अब क्या मतलब हुआ इसका? It means that the remarks means टिप्पणियां always finds the way and the name of yours can be attached to it. हाँ, सुना करो बात को ध्यान से. फोकस करने के लिए कह रहा हूं ना. ये क्या तरीका हो गया? सही तो बोला है मैंने, यही तो होगा. ये क्या तरीका हो गया तुम्हारा? आप डिसाइड करोगे. हाँ, और वट एवर यू से, वही बात चल रही है अभी. वट एवर यू से ऑलवेज assume that the person may overhear and adjust your remarks accordingly. सुनो फिर से, ध्यान से तो जरा. Whatever you say, always assume, ASSUME, assume का मतलब मान लो, हमेशा मान के चलो इस बात को, that the person may overhear, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, मान के चलो कि उसके पास जाएगी ये बात, and adjust your remarks accordingly. आप किसी को कोई बात कह रहे हो ना,
कोई गारंटी नहीं है कि वो जिसके बारे में आप कह रहे हो वो वहां नहीं जाएगी वो बात, आप मान के चल लो कि वहां जाएगी वो बात, उसी के हिसाब से आप बोलो। आप ये मत सोचो कि नहीं यार ये तो बहुत भरोसे का आदमी है, इससे कुछ भी कह देंगे तो वो नहीं जाएगी। क्लियर हो गई बात आपको? ऑल एक्सपीरियंस्ड पीपल एक्ट इन दिस वे। क्या मतलब हुआ इसका प्रियंका? ऑल एक्सपीरियंस्ड पीपल एक्ट इन दिस वे। उसके चेहरे से पता चल जाता है। चेहरा कहाँ आ गया? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड का मतलब चेहरा होता है। तो अनुभव। तो बोलो ना, ध्यान से फोकस तो करो, क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, ऑल द एक्सपीरियंस्ड पीपल एक्ट दिस वे। एक्ट का मतलब करना। अब क्या बचा है इसमें? तो कुछ भी नहीं बचा। ऑल द एक्सपीरियंस्ड पीपल एक्ट दिस वे। लोगों के अनुभव से पता चलता है। नहीं 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 मैडम, आप फोकस ही नहीं करते हो चीज के ऊपर, प्रॉब्लम यही है। ऑल द एक्सपीरियंस्ड पीपल, ये सब्जेक्ट आ गया, एक्ट दिस वे। सिमरन अभी भी नहीं समझ में आया? प्रियंका क्या करते हो? सिमरन कहाँ है? कोमल तुम बोलो। सभी अनुभवी लोग इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। भैया आ गया ना, और क्या है? सभी अनुभवी लोग इस प्रकार से करते हैं, यही तो था, और क्या था? ऑल द एक्सपीरियंस्ड पीपल, सब्जेक्ट आ गया, एक्ट का मतलब करते हैं, सभी अनुभवी लोग करते हैं दिस वे, ऐसा ही। बताओ, आपने फोकस ही नहीं किया, कितना सिंपल सा तो सेंटेंस था। मैंने आपको सारे मीनिंग बता दिए, सब बता दिया, फिर भी नहीं पकड़ पाए। now here is one of the most surprising things in life। सुनिए ध्यान से जरा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फोकस करो आप। No man really understands himself। समझ में आ गया प्रियंका? No man really understands himself। समझ में आ गया प्रियंका? मैन की मीनिंग बताना। इसकी इसकी मीनिंग नो मैन। नो मैन, कोई भी व्यक्ति नेगेटिव बन रहा है सेंटेंस। नेगेटिव भी तो बनता है ना ऐसे सब्जेक्ट के साथ, जब हम नोट लगा देते हैं तो उधर नोट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये तो सीखनी है चीजें आपको, और क्या सीखनी है आपको? अंग्रेजी कोई खाली टेंसेस पे थोड़ी खत्म हो जाएगी, सीखनी है आपको। जब आप फोकस करोगे चीजों को, नई नई चीजें आएंगी, तभी तो समझोगे आप। नो मैन रियली अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ। सर मैं बताऊं? बताओ। स्वयं पर विश्वास। पूरा बोला करो मैडम, स्वयं पर विश्वास से कैसे काम चल जाएगा? पूरा बोलो। नो मैन रियली इंसान अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ। वह अपने आप को समझता नहीं है। हाँ, नो मैन का मतलब कोई भी व्यक्ति। वह कहाँ आ गया इसमें? नो मैन आ रहा है, निगेटिव बन रहा है। समझो मैडम, समझो। कोई भी व्यक्ति वास्तव में खुद को नहीं समझता है, खुद को ही नहीं समझते हैं लोग। सिंपल सिंपल सी सेंटेंसेस आ रहे हैं, फोकस करोगे तो ध्यान आएगा। What a lot of argument and anger we should be saved if people would only understand this। What a lot of argument and anger we should be saved if people would only understand this। Anuj, Sir, I couldn't understand.
खुशी, सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? सुनो, what a lot of argument and anger we should be saved, एक क्लॉज तो ये है, किन किन आर्ग्यूमेंट से, कैसे कैसे गुस्से से हम खुद को बचा सकते हैं, इफ पीपल वुड ओनली अंडरस्टैंड दिस, अगर लोग इस बात को समझ लें, कि खुद को समझो, पहले चीजों को समझने की कोशिश करो. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू सॉ, अब तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आ रहा है एग्जाम्पल, यू सॉ अ मोटर एक्सीडेंट and were giving evidence, evidence about what happened. फिर से सुनिए, suppose for example you saw a motor accident and you are giving evidence, गवाही दे रहे हो आप. Sir, About what happened, क्या हुआ, हाँ बोलो. एविडेंस का मतलब गवाही, गवाही, जो नोट करो वर्ड्स को, और कहां से आएंगे, कोई डिक्शनरी में रटने से थोड़ी आएंगे वर्ड्स, ऐसे ही आते हैं. सुनोगे, रीडिंग करोगे तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, और कहां से बढ़ेगी, ये तो आपको बढ़ानी पड़ेगी. ये काहे के लिए करवाते हैं हम, क्यों हम बोल रहे हैं मीनिंग्स आपको बार बार लिखो इनको, स्पेलिंग लिखो इनको, पकड़ो. अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझना चाहिए. यही तरीका होता है वोकैबुलरी बढ़ाने का, और क्या होता है, स्किल तो ऐसे डेवलप होगी, और कैसे डेवलप होगी. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू सॉ ए मोटर एक्सीडेंट and you are giving your evidence about what happened, so you would feel perfectly confident, perhaps, that the car which knocked the boy over was a blue car. Another person would be equally confident that it was a gray car, and someone else that it was black car. अब बोलो, कोई कहेगा जी काली कार थी, कोई कहेगा जी नीली कार थी, कोई कहेगा जी ग्रे कलर की कार थी. अब क्या करोगे आप, समझ में आ गई बात आपको, किसका सच मानोगे आप. तो अलग अलग तरीके से भी देखते हैं ना लोग चीजों को. दिस, सो whenever you are arguing with someone, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस मैंने पढ़ा है. सो when you are arguing, लिखो arguing, arguing, argue, आर्ग्यूमेंट सुना है ना आपने, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू वर्ब होती है, आर्ग्यूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. जब आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, जब आप किसी के साथ बहस कर रहे हो, तर्क कर रहे हो, किसी बात पे बातचीत कर रहे हो. सो whenever you are arguing with someone about a point, so remember that there is quite a good chance that you are wrong, however confident you feel about it. क्लियर हो गया, किसको समझ में आई ये बात मुझे बताओ. फिर से पढ़ रहा हूं मैं पूरा पैराग्राफ, एक ही सेंटेंस का है. So whenever you are arguing with someone about a point, remember that there is quite a good chance that you are wrong, however confident you feel about it. समझ में आ गया अंजलि? यस सर, अगर तुम किससे लड़ाई कर रहे हो, नहीं, लड़ाई करना अलग बात है, तर्क करना, बहस करना वो अलग बात है. लड़ाई थोड़ी होती है, कोई बहस अपन कर रहे हैं किसी पॉइंट पे लेके बात कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट लड़ाई. लड़ाई इज अ डिफरेंट थिंग. क्लियर कर लो पहले. अगर हम किसी पॉइंट को लेकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो लड़ाई नहीं है. पहले तो इस बात को क्लियर कर लो. अब बोलो आगे. अगर हम किसी एक चीज पे बात कर रहे हैं, हाँ, तो अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, तो अगर हम कॉन्फिडेंट है तो वो बात गलत भी हो सकती है. हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो, कि पूरे पूरे चांस इस बात के होते हैं कि आप गलत हो सकते हो, चाहे आप कितना भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो.
So now this is the concluding of the today's lesson, that good manners come from having sympathy with others and from understanding your own limitations. The truth is too big for any one of us to understand. The truth as we see, it is only our truth. Okay? अच्छा, हमको तो हमारा दिखाई दे रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं. The truth as we see, it is only our truth and part of a larger truth. आया समझ में? So we should always realize that we are humble, unimportant, little people on this earth, and try to help the world as much as we can in our short time here. I expect to pass through this world but once. Any good, therefore, that I can do, or any kindness that I can show to any fellow creature, let me do it now. किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं तो मुझे करने की कोशिश करनी चाहिए. Let me not differ or neglect it, for I shall not pass this way again. So thank you very much.